स्टूडेंट, तो हमने चैप्टर 3 तक रिवीजन किया था। अभी चैप्टर 4 उठो धरा के अमर सपूतों, मतलब कि जो भारत माता है वो अपने सपूतों से कहती है कि चलो उठो, धरती पे जो सपूते हैं, मतलब जो अच्छे पुत्र हैं जो धरती के लिए अपनी जान भी त्याग सकते हैं, वैसे बच्चों को बोलते हैं उठो धरा के अमर सपूतों। उसके लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य है। खंड काव्य मतलब कि बड़ा। 26 बाल साहित्य है, 3 कहानी संग्रह है तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो उठो धरा के अमर सपूतों कौन सिखाता है? चिड़ियों को चंदा मामा, पुण्य नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन के कुपवन के अनेक प्रसिद्धि कृतियाँ उसकी है। अब ये काव्य है तो प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से, मतलब कि जो नेचुरल है, जो नेचुरल की हमारे नेचुरल तत्व है, जैसे कि चंद्र, सूरज, पक्षी, उस सब से हमें प्रेरणा लेनी है। अपने ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूतों की नव निर्माण करने का संदेश देना है। क्या करना है? तो कि जो हमारे तत्व है प्रकृति के, उससे हमें कुछ सीखना है और फिर उसका उपयोग करके हमें देश का नव निर्माण करना है। तो काव्य देखते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों पुण्य नया निर्माण करो। उठो, ધરાના જે અમર સપુત્રો છે, જે ડરતા નથી, એ ઊભા થાવ અને આપણી દુનિયાનું નવું નિર્માણ કરો। જન જન કે જીવન में, એટલે કે માણસ માણસના જીવનમાં फिर से, मतलब કે ફરીથી નવ સ્ફૂર્તિ, નવ પ્રાણ ભરો, નવી સ્ફૂર્તિ અને નવા પ્રાણ ભરો। નई प्रात है नई बात है। नई प्रात, प्रात मतलब कि સવાર, સવેરે, નવી સવાર છે, નવી વાત છે। નઈ કિરણ હે જ્યોતિ નઈ, કિરણ પણ કેવી છે? સૂરજની નવી, સવારમાં ઉગી સૂરજની પહેલી કિરણ, અને એનો પ્રકાશ જ્યોતિ એ પણ કેવી છે? નવી। નઈ ઉમંગે નઈ તરંગે, આપણા મનમાં નવી નવી ઈચ્છાઓ હોય છે, નવા નવા તરંગો હોય છે, નવી આશા હોય છે આપણા જિંદગીથી, અને નવી આપણને સાસ મળે છે સવાર થતાં। યુગ યુગ કે મુરઝે સુમનો મેં નઈ નઈ મુસ્કાન ભરો। આપણે જોઈએ જ છીએ કે સવાર થાય એટલે શું થાય છે? તો કે ફૂલો ઉગે છે, સાંજ પડે તો પાછા કરમાઈ જાય છે। તો યુગ યુગથી ચાલ્યું આવતું જે ફૂલો કરમાઈ ગયા છે એ વહેલી સવારે શું થાય છે? તો કે ખીલે છે અને એનામાં નવી નવી મુસ્કાન ભરે છે। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો। તમે પણ ઊભા થાવ અને નવા જગનું નિર્માણ કરો। ડાલ ડાલ પર બેઠે વિહગ કુછ, ડાળી ડાળી ઉપર પક્ષીઓ બેઠા છે થોડાક। નए સ્વર મેં ગાતે હૈ, એ રોજ સવારે નવા નવા રાગ ગાય છે। ગુનગુન ગુનગુન કરતે ભોરે મસ્ત ઉધર મંડરાતે હૈ, ભોવરા, ભમરો હોય એ પણ ગુણ 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 કરીને નવા નવા ફૂલોમાં રસ હોય એ ચૂસવા જાય છે। નવયુગ કી નૂતન વીણા મેં નયા રાગ નવગાન કરો। નવયુગનું જે આપણા નવા યુગનું જે આ પરિવર્તન આવ્યું છે સંસારમાં, એની વીણામાં એનો રાગ ભરો અને નવું ગાન કરો। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો। કલી કલી ખીલ રહી ઇધર વહ ફૂલ ફૂલ મુસ્કરાયા હૈ, નવી નવી કળી દિવસે ઉગે છે અને ફૂલ પણ મુસ્કરાય છે, હસે છે। ધરતી માં કી આજ હો રહી નઈ સુનહરી કાયા હૈ, ધરતી માની કાયા છે એ પણ કેવી થઈ ગઈ છે? સુંદર, રોજ બદલે છે। નૂતન મંગલમય ધ્વનિઓ સે ગુંજર જગ ઉદ્યાન કરો। તમે જે સારું ગાન કરો છો, જે પ્રાર્થના કરો છો, એનાથી આખું જગ, આખું મેદાન, આ બધું શું કરવાનું છે? તમારે ગુંજિત કરવાનું છે। ત્યાં લગી તમારો રાગ સંભળાવવો જોઈએ। તમે જે જે નવું નિર્માણ કરો એ આ બધામાં કામનું હોવું જોઈએ। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો।
सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपत्ति तुम्हारी है। હવે સરસ્વતીનું જે પાવન મંદિર આપણે સ્કૂલ કહીએ છીએ, બરાબર, એમાં શુભ સંપત્તિ तुम्हारी है, તમારે ત્યાં જઈને સારું ભણવાનું છે। तुमसे है हर बालक इसका रक्षक हो पुजारी है। આ બાળક બધા સ્કૂલે જઈને ભણે છે એ તમારી રક્ષા કરે છે અને બાળક છે એની પૂજા કરે છે। સત સત દીપક જલા જ્ઞાન કે નવયુગ કા આહ્વાન કરો। 100 દીપકો જલાવીને નવા યુગનું આહ્વાન, નવા યુગનું સ્વાગત કરો। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો। शब्दार्थ જોઈએ। निर्माण मतलब बनाना, गुंजित मतलब भौरों के गुंजार से युक्त, એનો અવાજ આવે તે। प्राय એટલે અક્ષર, उद्यान એટલે बाग, पुन એટલે फिर दोबारा, आह्वान मतलब ललकार, चुनौती, स्फूर्ति मतलब उत्साह। आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में, मतलब કે રોજ રાત પડી જતાં જે સુમનો, જે ફૂલો છે એ કરમાઈ જાય છે, એમાં નવી મુસ્કાન ભરવાનું કીધું છે। અને એવી રીતે જે અમર સપૂતો છે એ ઉઠો અને પૂર ધરતીનું નવું નિર્માણ કરો। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो कवि ने देश के सपूतों को किया है कि आप अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दीजिए या तो नए युग का निर्माण कीजिए। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो? तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति जो उद्यान है, स्कूलें हैं, कोई खंडेर है, वो सब हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है और उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? कि नए युग का निर्माण करें। कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? कवि नई मुस्कान सुमनों पर, એટલે કે फूलों पे देखना चाहते हैं। देश के नव निर्माण के लिए आप क्या करना चाहोगे? तो नव निर्माण के लिए हम अपने देश के लिए नई सोच एकता करेंगे, उसको प्रयोग में लेंगे और अपने देश का नव निर्माण करेंगे। इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो हमें हर कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अब है एक काव्य, उसके नीचे क्वेश्चन दिए है और आपको उसके आंसर देने हैं, जैसे हम पद्य समीक्षा इसको बोलते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाइयों के तूफानों में। डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। શું કહે છે? એક મોટો હિમાલય બતાવે છે આપણને કે આંધી, પાણી, આનાથી ડરવાની જરૂર નથી। તમે તમારા માર્ગ ઉપર ખાલી ઊભા રહ્યો, ગમે એવો તોફાન આવે, ગમે એવી મુશ્કેલી આવે, છતાં પણ તમારે ત્યાંથી ડગવાનું નથી। ડીગોનો अपने पथ से तुम, તમારે હલવાનું પણ નથી, તોય તમે બધું પામી શકો છો, તો જ તમે બધું પામી શકો છો। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, તું પણ ઉપર ઉડી શકે છે અને નભના જે તારા છે, આકાશના જે તારા છે એને તમે અડી શકો છો। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, જે પોતાના માર્ગ ઉપર એમનેમ રહે છે, એ લાખ મુસીબત આને में भी, લાખ મુસીબત ભલે ના આવે પણ મિલી સફળતા ઉनको जग में, તો પણ એને સફળતા જગમાં મળે છે। जीने में मर जाने में, એ પછી જીવી ગયો કે મરી ગયો પણ એની સફળતા આખા યુગમાં પ્રચલિત થાય છે। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, જેટલી મુશ્કેલીઓ રસ્તામાં આવી બધાયથી હિમાલય લડ્યો છે। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी के बड़ा हिमालय, એટલા માટે દુનિયાને સૌથી મોટો હિમાલય માને છે। तो हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें डट कर खड़े रहने का संदेशा देता है। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें डट कर खड़ा रहना चाहिए। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? क्योंकि कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? क्योंकि जितनी भी बाधाएं आई उन सबसे लड़ा है हिमालय। इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो हमें भी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आएगी तो हमें उससे डरना नहीं है, लेकिन उसके सामने खड़ा रहना है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस कवि का योग्य शीर्षक दीजिए। तो बड़ा हिमालय।
चित्र के आधार पर कविता लिखिए, वो आपको करना नहीं है। अपूर्ण काव्य पंक्ति। बाद में है संज्ञा का प्रयोग। आप संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में जो संज्ञा ढूंढकर अपना उसका भेद बताइए। सोना कीमती धातु है, गंगा पवित्र नदी है, उमंग दौड़ रहा है, दल जा रहा है, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। तो इसमें संज्ञा कौन है? तो कि सोना, गंगा, उमंग, दल, राजेश, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। साड़ी एक वचन है, साड़ियाँ बहुवचन है। बगीचे में एक लड़का है। बगीचे में कहीं लड़के हैं, तो लड़का है वो एक वचन है और लड़के मतलब बहुवचन। तो उपयुक्त वाक्यों में पढ़ने से पता चला कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे में लड़का से लड़के हो गए, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था। मुझे लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी। पक्षियों ने उड़ान भरी। उसने मुझे मिठाई दी। उसने हमें मिठाई दी। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। पहला है भाववाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो ये भाव हुआ, जबकि बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, तो प्रार्थनाएं मतलब जातिवाचक हो गया। नदी की चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई है वो भाववाचक है उसका। भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है, तो ये क्या हुआ? जातिवाचक। तो उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था, जो भाववाचक रूप में था। उनके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाया, तो जातिवाचक संज्ञाएं बन गई। तो भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, ये याद रखने का। जहाँ एक वचन है तो भाववाचक संज्ञाएं होगी और बहुवचन होगा तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित रेखांकित भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करते वाक्य फिर से लिखिए। तो विज्ञान ने दूरियों को कम किया है। तो विज्ञान ने दूरियों को कम किया है। नदी की लंबाई अधिक है, तो नदी की लंबाइयाँ अधिक है। चैप्टर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकीर जैनालबदीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। હવે આ જે પ્રશ્નોત્તરવાળો આખો પાઠ છે એ પોતે અબ્દુલ કલામ છે એણે બચ્ચો સાથે જે વાતચીત કરી એના ઉપર આધાર રાખે છે। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। आ बातचीत क्या समयनी है? तो कि જ્યારે डॉक्टर कलाम હતા એ राष्ट्रपतिना पद पर હતા ત્યારની આ વાત છે। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। जे छोकराओ नવું नવું જાણવા मागता હોય તો એના માટે જવાબ દેવા માટે હંમેશા તૈયાર હોય છે। તો આપણે જોઈએ પ્રશ્નકર્તા આર અરવિંદ કક્ષા 3 સેન્ટ મેડલ સ્કૂલ ચેન્નઈ। જે સૌથી પહેલો પ્રશ્ન કર્યો કોણ હતું? તો કે આર અરવિંદ। કક્ષા એની કેટલામી હતી? ત્રીજું। सेंट मेडल स्कूल में चेन्नई में भणतो हतो। तो एणे सवाल पूछो, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तमारा नानपण में एवी कोई घटना थई होय जे तमने हजी याद होय एवी कोई बात छे? तब डॉक्टर कलाम ने आंसर दिया, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। मने मारे 5मा धोरण में एक शिक्षक हता शिव सुब्रमण्य अय्यर, एनी मने एक बात याद छे। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। हवे एक दिवस ये अमने अमारा क्लास में समझावता था कि कोईपण पक्षी केवी रीते उड़ी सके। तो उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। उसने क्या किया? तो कि रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ जाके उसको लाइव एग्जाम्पल दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। मतलब कि एवी यादगार घटना आती कि जे मारा मन में बेसी गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। एटला माटे मैं आगे विज्ञान भणवानुं नक्की कर्युं। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, नाम शुं हतुं? सरयू मकर। कक्षा
5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। उसने पूछा है बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? नानपणमां आपणे कया भाषाने वधारे महत्व आपवुं जोईए? तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। एणे शुं कीधुं कि भाई मैं मारुं माध्यमिक शिक्षण छे एनी पढ़ाई पूरी करी ए मैं केवा करी छे तो कि मारी मातृभाषा में पूरी करी छे। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। पहला मैं मातृभाषा में भणवानुं शरू कर्युं अने ज्यारे कॉलेज में आव्युं पछी आगळ जे शिक्षा मेळवी एना माटे मैं इंग्लिश संस्थाओं में इंग्लिश भाषा में भण्युं छे। मेरा मानना है कि हमें कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। मारुं मानवुं एवुं छे कि कॉलेज में पण तमे तमारुं मातृभाषा छे ए भाषा में भणी शको छो, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। कोईपण माणस होय ए पोतानी मातृभाषा में ज विचारी सके छे। उसी में अपनी बात सहजता से कहने सक्षम होता है। एने कहीं कहेवुं होय तो पोतानी मातृभाषा में बहुत सारी रीते कही सके छे। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। हाँ, पण आपणा कोई बीजा साथे बातचीत करवा माटे वैश्विक स्तरे मतलब कि कोई तमे बिजनेस में हो तो तमारे ई संपर्क माटे तमारे शुं करवुं जोईए? इंग्लिश भाषा शीखवी जोईए। प्रश्न तथा त्रीजो, अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। एने सवाल पूछो है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। જ્યારે તમે યુવા અવસ્થામાં પહોંચો ત્યારથી તમારું લક્ષ્ય નક્કી હોવું જોઈએ કે તમારે શું કરવું છે। હંમેશા कुछ बड़ा सोचो, નાનું नहीं सोचवानुं। केवुं सोचवानुं? मोटું। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दे। तमे नक्की करी लीधुं कि मारे आज रस्ते जवानुं छे, मारी आज मंजिल छे, तो त्यारथी ज तमारे ई दिशा में तमारी मेहनत अने तमारो श्रम चालू करी देवानो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़कर मेहनत करनी चाहिए। जो जो आप आगे ही और बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा। जेम जेम तमे आगळ वधता जशो तेम तमारो सामनो घणी बधी मुश्केलीओ घणी बधी बाधाओं सामे थशे। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। तमारे हार मानवानी नहीं। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। जे पण मुश्केली आवे एने तमारे हरावानी छे, तभी जीवन में सफल हो पाओगे, त्यारे तमे आगळ वधी शकशो। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। पहला तो तमने जे ज्ञान आपवामां आवे छे ए ज्ञान तमे मेळवी लो। एनी पछीनो प्रश्न करता है चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? उसने क्या पूछा कि ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हम आज कर रहे हैं? तो भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना। एने हूँ चुनौती लगती थी डॉक्टर कलाम ने? तो कि 2020 सुधी में भारत है एक विकसित राष्ट्र बनी जाए अने ए उपरांत देशना जे 1 अरब से अधिक नागरिकों है ए लोकोना चेहरा पर मुस्कान हो, बधा खुश हो। यह राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। आ करवुं खूब अघरू है, एटला माटे चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक कक्षा 7 डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मलाड मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? साहस को क्या बोलते हैं? डॉक्टर कलाम अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। तमे तमारी चिंता कर्या वगर कोई बीजानी मदद करो ने त्यारे एने साहस कहेवाय छे। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल कक्षा 8 स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंडन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हमें प्रवासी भारतीय छीए, बरोबर? तो अमारे भारत प्रत्ये कोई गर्ववाड़ी बात हो एने अमे कई रीते अमारामां महसूस करिए। तो भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। कोईपण भारतीय मूलनो कोईपण एक व्यक्ति होय ए ज भारतीय परिवारनो अंग गणवामां आवे छे। उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। हमारो जो सांस्कृतिक वारसो है एना ऊपर एने गर्व होय छे। सौभाग्य से आप लोग ऐसी परिस्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए। तमे तमारा
मातृभूमि साथ जोड़ाયેલા છો और यही आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। उसके बाद ये प्रश्न करता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे परिवारों में से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेशा है? और जेने મળીએ જે તમને મળીને આવે ને એમ પૂછે શું બનવું છે, તો એમ કે મારે વૈજ્ઞાનિક બનવું છે, મારે એન્જિનિયર બનવું છે, મારે ડૉક્ટર બનવું છે, પણ અમારા ફેમિલીમાં પપ્પા કિસાન છે, મજદૂર છે, તો કલાકાર છે, तो हमें शू कर सकिए? तो डॉक्टर कलाम ने कहा किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, ये लोग पण जरूरी है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। આપણે નવા રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરવું હોય તો આપણે એની પણ મદદ કરવી, એટલે આપણે એની પણ મદદ જોઈએ। આપ સભી को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। તમે કયા ક્ષેત્રમાં જાઓ છો એ મહત્વ નથી, પણ તમે જે ક્ષેત્રમાં જાઓ છો એમાં તમારે કામયાબી હાસિલ કરવાની છે। उसके बाद है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्मिलिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगी? जे दिवसे दिवसे आ वस्ती वधारो थतो जाय छे, जे बेरोजगारी વધતી જાય છે, શું એ થઈ શકશે? डॉक्टर कलाम विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। विकास थाय देशनो એટલે ઓટોમેટિક जनसंख्या છે એની વૃદ્ધિમાં પણ ઘટાડો આવી જાય છે। લોકો ભણે ગણે એટલે પોતે એક સૂત્ર માને કે આપણું છોટું પરિવાર હોવું જોઈએ। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात सम्मिलित हुई कि छोकरीओने शिक्षण आपવું महत्वનું છે। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है कि पोते बे तो पोताना बे अथवा तो एक। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। હવે ભારત 2020 में एवं मिशन आवशे જેમાં युवाओं रोजगार मળી રહેશે। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संस्था में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिस वजह से उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे उन क्षेत्रों में बेरोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे, मतलब उसको भी नौकरी धंधा मिल जाएगा। प्रश्न करता है अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम ने कहा भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। અત્યારે આપણી સંખ્યા કેટલી છે? તો કે 1 અરબથી વધારે। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। એમાં 54 करोड़ લોકો છે એ કેવા છે? 25 વર્ષથી નાના। એ અમારી રાષ્ટ્રીય શક્તિ है, કારણ કે જેટલું નાનો ઇન્સાન એટલું એ દેશ માટે કંઈક કરી શકે। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुनियोजित खाका की उपलब्ध है, मतलब कि अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग डिग्रियाँ हासिल है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों में एक एकता निश्चय है कि हमें विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफलता होगी। 54 करोड़ जो युवाओं है कंईक ने कंईक तो कर बतावशे, एमांथी अर्धा तो आमां आपणा देशने विकास तरफ लई जशे। प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलोर। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? हवे अमारा जेवा छोकरा होय घणा ऊंचा सपना राखे छे, पण पैसानी हिसाबे अथवा तो कोई प्रॉब्लमनी हिसाबे अमे प्राप्त करी सकता नहीं, तो अमारे शुं करवुं? तो डॉक्टर सलाम बोलते कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों में लोन मिलती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है, मुश्किली तो आवानी ज छे, पण कठोर परिश्रम करके उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। तमे सारू काम करीने अने वधारे मेहनत करीने इन्हें हरावी सको छो। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, तमारे एनाथी हारवुं जोईए नहीं। प्रश्न करता है मिथुन के, द्वितीय वर्ष बीवेल, AICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम बोलते हैं जिम्मेदार राजनीति दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बतानी चाहिए, मतलब मैंने दूर दूर लगी जोवुं जोईए। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनैतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना से ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। गांधीजी अहिंसा, सत्य और निस्वार्थ थी ब्रिटिश संस्कार सामे विरोध करीने लड़ाई करी हती। वर्तमान ज्ञान नीतियों में अपने कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत, उत्कृष्टता, पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा, एमांथी एने कंईक सीखवुं जोईए। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों को
उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। एने जे 26 करोड़ युवा पेढ़ीओ अत्यारे गरीब रेखा पर जीवे छे एना माटे पण एने कंईक करवू जोईए। प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, NGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि में विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग से क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद योग्यता के विकास पर विचार किया गया है कि जो महत्वना पद होय छे एमां तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है, सौथी अलग अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जे सशस्त्र सेनाओं है एमां आपणे महिलाओं पण राखी सकीए छीए। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हो गया। आपणे कहीए जल सेवा, दरियाई सेवा, आर्मी, आ बधायमां अमे त्रणेयने पुरुषों ने महिलाओं समान अधिकार आपशुं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरण पर कार्य करने पे सहयोग दे सकती है। बैठा बैठा कोईपण तमारे टेक्निकली काम होय तो ये तमे महिलाओं करी सको छो। प्रश्न करता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अतिवृष्टि व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम, तुम इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, तुम्हें सौथी मोटी एक कुर्सी देखी छे। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है, अत्यारे कुर्सी यहाँ नहीं। ठीक ऐसे ही अनुपात चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। जे वस्तु जरूरी नहीं हो एना ऊपर कोई खर्च करवामां आवशे नहीं। शब्दार्थ देखते हैं। जीवंत तो जीवित, जीता, जागता। मातृभाषा मतलब परिवार की भाषा या तो माँ की भाषा। वैश्विक मतलब विश्व संबंधी। बृहद मतलब बड़ा, महान, भारी। विरासत मतलब धरोहर। दस्तकार मतलब शिल्पकार। दरकार मतलब जरूरत। उत्कृष्ट मतलब उत्तम, श्रेष्ठ। विघ्न मतलब बाधा, अड़चन। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। बहुगुणक मतलब कि बहुत अधिक। निष्ठा मतलब श्रद्धा, विश्वास। अनुत्पादक मतलब जो उत्पन्न न करे। अतिविशिष्ट मतलब बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक मतलब समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका मतलब ढांचा, नक्शा, मसोखा, आलेख। प्रचुर मतलब पर्याप्त। तो आगे का अभ्यास आप बुक्स में से पढ़ लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम भरत वाला पार्ट पढ़ेंगे। ओके, इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो लेक्चर खत्म होने के बाद आप पूछ सकते हो। थैंक यू।